Okay, let's start with the lecture. So you are learning vectors in R programming. Okay. In last lecture we discussed about different ways of accessing vector elements. Okay. So quick revision. Tell me what is vector. Yes. What you can say? What is vector? Rishikesh. Mujban. Yes. What is vector? Collection of elements of same data type. Na? Vector is nothing but collection of elements of same data type. So in last lecture we discussed about different ways of accessing vector elements. Accessing vector elements means at any time you can retrieve any element from the vector. So there are different ways are given how you can access the vector element. So 4 different ways are there according to which we can access the vector elements. So up to this we discussed in last lecture. I think we also discussed about negative indexes in R. Okay, while retrieving, while accessing vector elements, we can also specify negative index in the square bracket. Specifying the negative index means omitting that particular element at that particular position. Whenever you want to access vector elements by using negative index means the element at that particular index positions are skipped and remaining elements are retrieved or accessed. Manipulation also we discussed in last lecture. Important functions also we discussed in last lecture. है ना? What is the use of len function? Yes, len function का use क्या है? It is used to calculate the length of the vector. Length means number of elements present in the vector. Okay, at any time you can check how many elements are there in the vector. So which function? Use ready-made function length. Length function को सिर्फ आपको वेक्टर का नाम पास करना है ना? So जो भी वेक्टर का नाम आप पास करोगे उस वेक्टर में कितने एलिमेंट्स है वो रिटर्न हो जाएगा, है ना? सपोज आपके स्क्रिप्ट में आपने मल्टीपल वेक्टर्स वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और हर एक वेक्टर में अलग अलग एलिमेंट्स आपने स्टोर किए हैं, तो कौन से वेक्टर में कितने एलिमेंट है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो. प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज द रेडीमेड फंक्शन इज अवेलेबल व्हिच इज लेंथ. ठीक है. If I want to retrieve top few elements of the vector, first few elements of the vector, which function I can use? Head function. Head function accepts 2 parameters, name of the vector and limit. Okay. If you don't specify the limit, how many elements will get retrieved? 6 elements. Top 6 elements. Order that many elements are available. And tail function. Okay. Tail function is used to access last few elements of the vector. Last elements, है ना? Tail function. So up to this we discussed in last lecture. Today we'll discuss about vector operations. So यहाँ पे 4 operations specify किए स्लाइड में, और भी है लेकिन आपके सिलेबस में इतने ऑपरेशन आई थिंक दिए तो हम उतने ही ऑपरेशन डिस्कस करेंगे. What type of operation we can perform on the vectors? You may have to use all these operation on vectors while solving our assignments based on vectors. तो पहला ऑपरेशन है कंबाइनिंग वेक्टर्स. Already we discussed about this. We can combine two or more vectors as a single vector into another. Okay. So again C function. By using C function we can combine several vectors. Okay. While creating vector also you are supposed to use C functions. Okay. Vector क्या होता है? Collection of elements. So while creating vectors you are supposed to combine those several elements. And how to combine several elements? By using C function. ठीक है. अगर आपको एक वेक्टर क्रिएट करना है तो सी फंक्शन का यूज करके आप मल्टीपल एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं. उसी तरह अगर मेरे पास मल्टीपल वेक्टर्स है और हर एक वेक्टर में बहुत सारे एलिमेंट्स है तो उसी तरह मैं सारे वेक्टर्स को भी कंबाइन कर सकता हूं बाय यूजिंग सी फंक्शन. ठीक है. सो कंबाइनिंग वेक्टर्स. अभी मैं यहाँ पे वेक्टर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ. नो प्रॉब्लम. आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेक्टर बट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वेक्टर बाय यूजिंग अनदर वेक्टर्स. आई कैन कंबाइन सेवरल वेक्टर्स एंड आई कैन क्रिएट अ न्यू वेक्टर. ठीक है. So the C function is not only used to create a vector but also it is also used to combine two vectors. By combining one or more vector it forms a new vector which contains all the elements of each vector. Okay, so example दिया यहाँ पर. So first vector is A. The name of the first vector is A which consists of 3 elements 1, 2 and 3. Numeric value store किए first vector A में. So देखो कैसे क्रिएट किया है वेक्टर को सी फंक्शन का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू कंबाइन किया है वेक्टर के अंदर. ठीक है. सो 3 वैल्यूज गेट स्टोर इन द सिंगल वेरिएबल A.
Second vector B is created over here. B is equal to C of PQR. So these are the character values. So second vector B is character vector. Okay. So these are the two separate vectors. I can combine these two separate vectors to form a new vector. So this is the way how I can combine these two vectors A and B. C, the name of third vector, whatever it will be created, the name of that vector will be C. Okay. So C is equal to, you can actually give any name to the vector, depends on you. So मैंने यहाँ पे C नाम दिया है, तो C is equal to C of A comma B. So here C is a function which is used to combine several vectors. So मैंने यहाँ पे separate A और B vector को combine किया है. What is your name? अखिलेश. ठीक है, sit down. आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है कोविड का? हाँ किया ना? मास्क पहनो, मास्क. Everybody wear your mask. Students. Rishikesh. Only two on a bench. Two students on a bench. Okay, so you can combine several vectors by using this C function. So C is equal to C of A comma B. So this instruction will actually create a new vector of name C. And what elements will be stored in the C vector? All the elements from vector A as well as all the elements of vector B. Okay. So later if you print vector C, it will display 1, 2, 3 PQR. Okay. Now see here, when this C vector is created from this vector A and vector B, all the elements of vector A are numeric values and all the elements of vector B are character values. But when this new vector C is created by combining this A and B vector, the actual data type of this C vector will be character. Okay, because vector is nothing but is a collection of elements of same data type. वेक्टर के अंदर आप सिमिलर टाइप्स के एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैंने जब ये सी वेक्टर को क्रिएट किया है तो दो वेक्टर अलग अलग वेक्टर को कंबाइन किया है. उसमें पहला वेक्टर उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज थे, ए वेक्टर में न्यूमेरिक वैल्यूज है 1 2 3 और बी वेक्टर में कैरेक्टर वैल्यूज है. तो न्यूमेरिक और कैरेक्टर वैल्यूज को मैं एक सिंगल वेक्टर में कंबाइन नहीं कर सकता, बिकॉज वेक्टर इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप. सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स आप वेक्टर के अंदर स्टोर कर सकते हो. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इंटरनल व्हाट विल हैपन, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस वेक्टर ए आर कन्वर्टेड इनटू कैरेक्टर वैल्यूज. ठीक है, दिस हैपन ऑटोमेटिकली. ठीक है, इंटरनली द टास्क विल बी परफॉर्म बाय द मशीन इटसेल्फ. ठीक है, ठीक है. अगर आपने मल्टीपल वेक्टर्स को अगर कंबाइन किया सिंगल वेक्टर में और उस मल्टीपल वेक्टर में अलग अलग टाइप्स के अगर एलिमेंट्स है हर एक वेक्टर में, तो वो सेम डेटा टाइप सिमिलर टाइप्स से कैरेक्टर में कन्वर्ट होके देन कंबाइन होते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाई if you print C vector which is a combination of A and B vector, actually it will print 6 values in that vector C. ठीक है, PQ और तो ऑलरेडी कैरेक्टर में थे, लेकिन जो 1 2 3 न्यूमेरिक थे A वेक्टर में वो बन गए कैरेक्टर वैल्यूज. ठीक है, एंड दिस एंटायर वेक्टर C is character vector. ठीक है, you can also write like this. So here I created a new vector, say D is equal to B comma A. So first the element of B will be combined with the elements of A and a new vector will be created, say D. Okay, later if you print D vector, it will display PQR 1 2 3. Okay, so not only two, any number of vectors you can combine at any time. Okay, multiple vectors also you can combine at any time. So multiple vectors name you are supposed to pass to this C function. यहाँ पे typing mistake, यहाँ पे C लिखना चाहिए था, तो मैं यहाँ पे typing mistake. ठीक है, so ऐसे typing mistake आपको करना नहीं. कल भी मैंने आपको ये पूछा था तो आपने डायरेक्टली इंडेक्स नंबर बताया था ना, तो इंडेक्स नंबर अगर आपको कंबाइन करना तो C फंक्शन का यूज करना है. I'm creating a vector A, numeric vector में यहाँ पे create कर रहा हूँ. So A is equal to C of 3
8, 9. Vector A is 3 elements, 3, 8 and 9. And if you take the class of this vector A, it is numeric. Okay, numeric value stored here. These are not the integer values. Okay, numeric values. Then B vector, B character vector में यहाँ पे create करो. B is equal to C of say P, Q and R. So B vector में again 3 elements are get stored in of character type. So if you check the class of B vector is character. ठीक है, पहला वेक्टर न्यूमेरिक है, दूसरा वेक्टर कैरेक्टर है, लेकिन इस दोनों वेक्टर को मैं कंबाइन कर सकता हूं एज अ थर्ड वेक्टर. ठीक है, सो कंबाइन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वेक्टर्स आई वांट टू स्टोर से सपोज इन डी वेरिएबल. सो डी इज इक्वल टू क्या कंबाइन करना है, दोनों वेक्टर को कंबाइन करना है, सी ए वेक्टर को और बी वेक्टर को. तो कैसे कंबाइन करेंगे, अगेन बाय यूजिंग सी फंक्शन. कंबाइन करने का जो फंक्शन है सी फंक्शन. किसको कंबाइन करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंबाइन करना है. So new vector is created here, D vector, and if you print D, it will give elements 3, 8, 9, P, Q, R. But if you go through all the elements are of character type. ठीक है, A vector के लिए भी न्यूमेरिक थे, वो यहाँ पे कंबाइन करते समय कैरेक्टर हो गए, because vector can consist of elements of similar type only. So even if I combining the vectors of different types, while combining all the elements will be converted into the same data type. So कौन से डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है, कैरेक्टर में. अगर अलग अलग डेटा टाइप अगर आपने क्लास किया तो, और आपने अगर क्लास चेक किया, क्लास ऑफ दिस डी वेक्टर इट इज नाउ कैरेक्टर. ठीक है, तो दिस द फर्स्ट ऑपरेशन. Second is arithmetic operations. Arithmetic operations also you can perform on the multiple vectors. Arithmetic operation कौन-कौन से है ना, कौन-कौन से होते हैं arithmetic operations? Addition, subtraction, multiplication, division, mod. All these operations are nothing but the arithmetic operation. These arithmetic operations also you can perform on the two vectors. ठीक है, we can perform all arithmetic operations on vectors. The arithmetic operations are performed member by member on vectors. ठीक है, when you perform arithmetic operation on vector, the operation will be performed element by element. ठीक है, अगर दो वेक्टर का एडिशन करना है तो फर्स्ट वेक्टर का पहला एलिमेंट दूसरे वेक्टर का पहला एलिमेंट दोनों का एडिशन होगा. देन सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर दोनों का एडिशन होगा, एंड सो ऑन, मेंबर बाय मेंबर, एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन होगा. ठीक है, व्हेन यू परफॉर्म एडिशन ऑपरेशन ऑन टू वेक्टर्स. एग्जांपल, we can add, subtract, multiply or divide two vectors. So these are the arithmetic operations that you can perform on the vector. So example is given over here. Suppose vector A is 8, 4, 10. 3 elements are stored in vector A. Vector B के अंदर 3 एलिमेंट स्टोर किया है, 2, 6 and 5. So what I can do, I can perform addition operation on these two vectors. Simply I can write A plus B. A plus B means what? I am performing addition operation on these two vectors A and B. ठीक है, तो इसका रिजल्ट देखो कैसे डिस्प्ले होगा. ए कमांड अगर मैंने टाइप किया कमांड प्रॉम्प्ट पे A plus B, तो 8 plus 2 10, 4 plus 6 10 and 10 plus 5 15. So this will be the result of addition of two vectors. ठीक है, addition operation will be performed on each and every element, element by element. ठीक है, I can also perform arithmetic operation on two vectors like A minus B. So 8 minus 2 is 6, 4 minus 6 is minus 2 and 10 minus 5 is 5. ठीक है, similarly I can perform multiplication operation on two vectors. If you want to perform, what should you write? A star B, where star is multiplication operator. So A vector और B vector का मुझे क्या करना है, suppose multiplication करना है, so I can write like this. तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8 into 2 16, 4 into 6 24 and 10 into 5 50. ठीक है, I can also perform division operation on the two vectors. I can write like this, A divided by B. So what will happen, each and every element of A will be divided by the element of B. What are the result that will get then? ठीक है, so 8 divided by 2 is 4.0. अगर मैंने B divided by A लिखा तो, या पे B divided by A ऐसे लिखा तो, elements of B will be divided by the elements of A. So accordingly the resultant value will be there. ठीक है, so यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, A divided by B. So 4 divided by 6 is 0.66. Then 10 divided by 5 is 2.0.
ठीक है. You can also perform mod operation on two vectors like a percent b. Mod operator is what? Percent. Okay, so the element of a will be divided by the element of b and it will access the remainder part of the division. Okay, so when 8 divided by 2, remainder is 0. Then 4 divided by 6, we cannot divide 4 by 6, so for remainder 4 as it is. Then 10 divided by 5, remainder will be 0. Okay, remainder. And last is floor division. The floor division operator is what? Percent/percent. Okay, so this operation, this division operation and this division operation is same, but this operation gives the result in decimal point. This operator skip the decimal point, digits after decimal point. Okay, a divided by b and a percent/percent b. So this is a division, floor division operator. तो दोनों में difference क्या है? Both the operator gives the question part, not the remainder. Question part of the division. Okay, but this operator gives the question part in decimal form. The exact question part will be given like 4.0, 0.666 like this. If the elements of A divided by the elements of B, question part will be in decimal form. If you use the slash operator, अगर आपको decimal point के बाद के digits अगर skip करना है, तो आप कौन सा operator use कर सकते हो? Floor division operator, and the symbol for that operator is percent/percent. Okay, so when you write A percent/percent B, so 8 divided by 2, question part will be 4 only, not 4 point something. 4 divided by 6 is 0, not 0 point something. Okay, and yes, we cannot divide 4 by 6. Okay, so actually 4 divided by 6 is 0 point something, but as this operator skip the digits after decimal point, result will be 0 only. Okay, and so on. Any doubt in arithmetic operations? So we'll try to perform all this operation. A is equal to C of 2, 4, 7. These are the elements of vector A. B is equal to C of 5, 2, 6. I am executing this instruction command prompt, so directly I can give the command A plus B, which you cannot write in script. स्क्रिप्ट में ऐसे नहीं ले सकते आप. आपको क्या लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट में? अगर लिखना है इंस्ट्रक्शन तो C is equal to A plus B, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, अब ये कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं लिख रहा हूं तो डायरेक्टली जो भी रिजल्ट होगा A plus B को डायरेक्टली डिस्प्ले होने वाला है एज आउटपुट. सो एज सून एज आई प्रेस एंटर, A plus B का आंसर क्या डिस्प्ले हो रहा है? 763. सो दिस रिजल्ट यू कैन स्टोर इन सम अदर वेरिएबल. अगर स्क्रिप्ट में अगर आपको लिखना तो क्या लिखना पड़ेगा? C is equal to A plus B. ठीक है, ये भी अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट कर रहा हूं. तो देखो 2 plus 5 7, 4 plus 2 6 and 7 plus 6 is 30. ठीक है, सो एक्सेल फाइल में हम स्क्रिप्ट लिखते हैं और अगर आपको दोनों वेक्टर का एडिशन करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? दैट एडिशन यू मस्ट स्टोर इन सम अदर वेक्टर. सो द इंस्ट्रक्शन यू मस्ट राइट इन द स्क्रिप्ट इज लाइक दिस: C is equal to A plus B. ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेक्टर A और वेक्टर B का एडिशन कर रहा हूँ. दैट रिजल्ट विल गेट स्टोर इन वेक्टर C and this will be the actual vector C. Vector C में 3 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे, 7, 6 and 13. So automatically one more vector will be created here, C vector, which is the result of addition of A vector and B vector. ठीक है, so यहाँ पर भी मैं वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पे. ठीक है, और later I can print that vector C as in print function. Print C अगर मैंने लिखा तो वही means successfully C vector is created. ठीक है, यहाँ पे क्रिएट नहीं हुआ था C वेक्टर, यहाँ पे डायरेक्टली जो भी रिजल्ट था वो डिस्प्ले हो रहा था. हमने यहाँ पे क्या किया है, जो भी रिजल्ट है A plus B का वो हम दूसरे वेक्टर में स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, उसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो लाइक A minus B. ठीक है, तो 2 minus 5 is minus 3, 4 minus 2 is 2 and 7 minus 6 is 1. What will be B minus A? इसका रिजल्ट क्या होगा? B minus A का रिजल्ट, so 5 minus 2 is 3, 2 minus 4 is minus 2 and 6 minus 7 is minus 1. So 3 minus 2 and
माइनस। मल्टीप्लीकेशन के लिए a स्टार b 5 into 2 10, 4 into 2 10 and 7 into 6 42। उसी तरह डिवीजन ऑपरेशन a डिवाइडेड बाय b, डिवीजन का क्वेश्चन पार्ट डेसिमल फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। अगर मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट स्किप करना तो कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा? डिवीजन का फ्लोर डिवीजन, जो कि है a परसेंट स्लैश परसेंट, दिस इज ऑपरेटर फॉर फ्लोर डिवीजन। b तो 0 2 and 1 दैट विल द रिजल्ट। ठीक है, और ये क्या है? क्वेश्चन पार्ट, डिवीजन का क्वेश्चन पार्ट है, रिमाइंडर पार्ट नहीं है, क्वेश्चन पार्ट। दिस बोथ द ऑपरेटर गिव द क्वेश्चन पार्ट ऑफ द डिवीजन। ठीक है, और डिवीजन का रिमाइंडर चाहिए तो कौन सा ऑपरेटर है? मॉड ऑपरेटर, विच इज परसेंट परसेंट। सो a mod e, so remainder of the division will be 2 0 and 1। so when 2 is divided by 5, remainder will be 2। yes, we cannot divide 2 by 5 ना। 2 को अगर आपको डिवाइड करना है 5 से, कैन यू डिवाइड 2 by 5? नो, तो रिमाइंडर एज इट इज 2। ठीक है, and 4 divided by 2, yes, if you divide 4 by 2, remainder will be 0। ठीक है, and 7 divided by 6, अगर 7 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर पार्ट क्या आएगा? 1। so this is the remainder 1। ठीक है, so all these are the arithmetic operations you can also perform on the vectors। लॉजिकल इंडेक्स, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था वेक्टर जब एक्सप्लेन किया था, तो ठीक है कि यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ अ वेक्टर बाय स्पेसिफाइंग से लॉजिकल वैल्यूज। ठीक है, तो a is equal to c of अमित सुरेश नीलेश नरेश, तो कुछ स्ट्रिंग्स कैरेक्टर वैल्यू स्टोर किए a वेक्टर में। ठीक है, so if I want to retrieve Suresh and Nilesh, these two values I want to access. How I can access? By using logical index। so for remaining elements specify false value, जो एक्सेस करना है उसके लिए आपको ट्रू स्पेसिफाई करना है, उस लोकेशन के लिए आपको ट्रू स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो b is equal to c of false comma true comma true comma false। so this instruction will actually create this b vector, और b vector में क्या स्टोर हो जाएगा? सुरेश एंड नीलेश ओनली। व्हाई? तो जब मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एक्चुअली सी ऑफ और टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, आई थिंक like this you are supposed to write, combine करना indexes। a in square bracket you are supposed to combine these indexes or these logical values। ठीक है, so जिस पोजीशन के लिए ट्रू लॉजिकल वैल्यू स्पेसिफाई किया है उस पोजीशन का एलिमेंट बी वेक्टर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने करके दिखाया था बाद में पहले। और c इज इक्वल टू a ऑफ b। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल कैसे दिया है इस स्लाइड पे? ठीक है, ये अलग वेक्टर है b वेक्टर, सेपरेट वेक्टर, एंड दिस वेक्टर इज अ लॉजिकल वेक्टर। दिस a वेक्टर इज अ कैरेक्टर वेक्टर, b वेक्टर इज अ लॉजिकल वेक्टर। a वेक्टर में कैरेक्टर वैल्यू स्टोर किए हैं और b वेक्टर में लॉजिकल वैल्यू स्टोर किए, लाइक फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। ठीक है, what I can write is I'm creating a new vector c here by using this expression c is equal to a of b, where a is a first vector and b is a second vector। so vector a के ऐसे एलिमेंट वेक्टर b का इंडेक्स का यूज करके क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर b में जिस लोकेशन पे ट्रू है, वेक्टर a के उस लोकेशन के एलिमेंट्स c में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, सो वेक्टर बी में देखो कौन कौन से लोकेशन पे ट्रू वैल्यूज है, सेकंड और थर्ड।
So ऐसे second और third element कौन से A vector में? So Suresh and Nilesh. So that will get stored in C variable, and later if you print C, it will display Suresh and Nilesh. ठीक है? हाँ, ट्रू वैल्यू नहीं, अभी ये लॉजिकल वेक्टर है, देखो बी, तो लॉजिकल वेक्टर में जिस लोकेशन पे ट्रू है, हमको कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है? हम ए वेक्टर के एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं. व्हेन यू राइट ए ऑफ बी, व्हेन यू राइट यू ए ऑफ 2 मींस यू आर एक्सेसिंग सेकंड एलिमेंट ऑफ वेक्टर ए. व्हेन यू राइट ए ऑफ 3, यू आर एक्सेसिंग थर्ड एलिमेंट ऑफ ए. पर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ए ऑफ बी. स्क्वायर ब्रैकेट में एक्चुअली इंडेक्सेस यूज होता है ना, तो ये बी वेक्टर के जो एलिमेंट्स है वो एज ए इंडेक्स एक्ट करेगा यहाँ पर. ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यूज है कौन से वैल्यूज है? लॉजिकल वैल्यूज है. ठीक है, तो बी वेक्टर में जिस लोकेशन पे ट्रू लॉजिकल वैल्यू है, उस लोकेशन के एलिमेंट्स फ्रॉम दिस वेक्टर ए विल गेट रिट्राइव्ड एंड दोस विल बी स्टोर्ड इन सी वेरिएबल. ठीक है, तो देखो अभी कौन कौन से एलिमेंट ट्रू है बी वेक्टर में, सेकंड और थर्ड. ठीक है, सो बी वेक्टर में सेकंड और थर्ड एलिमेंट ट्रू है, लेकिन हम कौन से वेक्टर के एलिमेंट्स एक्सेस कर रहे हैं? ए वेक्टर का. तो ए वेक्टर के कौन से एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे? सेकंड एंड थर्ड, व्हिच इज सुरेश एंड नीलेश. होप यू अंडरस्टूड दिस. ना समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? ठीक है, आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा. Okay, so here I am storing some elements in this vector A. मैं सिर्फ 3 एलिमेंट स्टोर कर रहा हूं. A is equal to C of 4, 7, 6. I'm creating second vector. B is equal to C of, and now this will be the लॉजिकल वेक्टर. यहाँ पे मुझे लॉजिकल वैल्यू स्टोर करना है. जैसे यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर में मैंने न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर किया है, तो उसी तरह मुझे यहाँ पे लॉजिकल वैल्यू स्टोर करना है. लॉजिकल वैल्यू कौन कौन से होते हैं? ट्रू एंड फॉल्स. सो दिस वेक्टर विल बी द लॉजिकल वेक्टर. Make sure that this false and true you are supposed to write directly without double quotes. अगर आपने डबल कोट्स में लिखा तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा. ठीक है, सो व्हेन आई राइट, सपोज मुझे ए वेक्टर के एलिमेंट एक्सेस करना है. कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है? सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है ए वेक्टर का. तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए ऑफ. तो इट इज क्लियर दैट कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको स्पेसिफाई करना है कि कौन सा एलिमेंट आपको रिट्राइव करना है. ठीक है, ये तो क्लियर है. अभी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखना होता है कि आपको कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है. तो मुझे कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है? ए वेक्टर का सेकंड एलिमेंट. सो 7 एक्सेस हो जाएगा. एज्यूम करो मुझे बी वेक्टर का थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए ऑफ नहीं, बी. मुझे बी वेक्टर का एक्सेस करना है. सो बी ऑफ कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है? थर्ड. तो ब्रैकेट में मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा 3. सो बी वेक्टर का थर्ड एलिमेंट कौन सा है? ट्रू. ठीक है, नाउ फिर मुझे ए वेक्टर के एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आउटपुट कौन से वेक्टर का आएगा? अभी ए वेक्टर का आएगा. ठीक है, ए वेक्टर के एलिमेंट एक्सेस करना है. कौन से एलिमेंट एक्सेस करना है? बी वेक्टर में जिस लोकेशन पे ट्रू वैल्यू है, उस लोकेशन के एलिमेंट्स फ्रॉम वेक्टर ए मुझे रिट्राइव करना है. तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए ऑफ बी. बी वेक्टर में जिस लोकेशन पे ट्रू वैल्यू है, उस करस्पॉन्डिंग लोकेशन का वेक्टर ए का एलिमेंट क्या है वो मुझे रिट्राइव करना है. तो मुझे लिखना पड़ेगा ए ऑफ बी. ठीक है, तो देखो अभी बी वेक्टर में कौन कौन से लोकेशन पे ट्रू वैल्यूज है? फर्स्ट एंड थर्ड. लेकिन हम कौन सा वेक्टर के एलिमेंट रिट्राइव करने वाले हैं? ए. तो ए का फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट कौन सा है? 4 एंड 6. दैट विल गेट रिट्राइव. ठीक है, नाउ होप यू अंडरस्टूड दिस. ज्यादा ये ऑपरेशन ज्यादा इतना यूज नहीं करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसलिए स्लाइड पे दिया है. ठीक है, एंड देन डुप्लीकेट इंडेक्स, लास्ट ऑपरेशन. एंड index vector allows duplicate values, which mean we can access one element twice in an operation. ठीक है, while accessing the vector elements, if one index you specify multiple times,
the element at that index will also retrieve multiple times. ठीक है? For example, वेक्टर ए का मुझे सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है, क्या लिखना पड़ेगा? a of 7, sorry, a of 2 7. ठीक है, अगर मुझे 7 एक्सेस करना है ट्वाइस, 2 बार आउटपुट में आना चाहिए, क्या लिखना पड़ेगा? वही इंडेक्स मुझे 2 बार स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अगर मैंने वही इंडेक्स अगर 2 बार स्पेसिफाई किया तो वो एलिमेंट भी 2 बार एक्सेस होगा. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट शुड आई राइट? a of 2, 2, is it correct? Again you are doing the same mistake. C function. सी फंक्शन यूज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे मल्टीपल इंडेक्स, मैं सिंगल इंडेक्स स्पेसिफाई करोगे यहाँ पे नहीं. 2, 2 these are the 2 indexes. ठीक है, मींस मल्टीपल वैल्यूज आर देयर. सो व्हेनेवर यू स्पेसिफाई मल्टीपल वैल्यूज, राइट दोस वैल्यूज इन सी फंक्शन. ठीक है, सो a of c of 2, 2, 7 7 will be the output now. ठीक है, सो एक इंडेक्स आप कितनी बार भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जितने बार आप इंडेक्स स्पेसिफाई करोगे उतने टाइम वो एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा. ठीक है, मेक श्योर दैट कि व्हेन यू राइट मल्टीपल इंडेक्सेस दैट मस्ट बी रिटन बाय यूजिंग द सी फंक्शन. सी फंक्शन को बोलना नहीं है. ठीक है, सो मैंने सेम इंडेक्स मैंने 4 बार स्पेसिफाई किया तो वही एलिमेंट 7 एलिमेंट 4 बार एक्सेस हुआ. ठीक है, सो दैट इज गिवन ओवर हियर इन दिस स्लाइड. डुप्लीकेट इंडेक्स, एक इंडेक्स मल्टीपल टाइम्स स्पेसिफाई किया. So A is equal to C of Pune, Mumbai, Nasik, Nagpur. So it is a character vector. A is a character vector. ठीक है? When I write A of 2, it will access the second element which is Mumbai. But when I write A of C of 1, 2, 2, 3. So यहाँ पे मैंने multiple indexes specify किया है, तो मैंडेटरी है कि C फंक्शन का यूज करें. ठीक है, तो पहला एलिमेंट कौन सा है? पुणे. देन सेकंड कौन सा है? मुंबई. अगेन सेकंड कौन सा है? मुंबई. एंड थर्ड इंडेक्स इज नासिक. सो आई पुट इन द आउटपुट इज. ठीक है, देन रेंज इंडेक्स इज यूज्ड टू स्लाइस आवर वेक्टर टू फॉर्म अ न्यू वेक्टर. फॉर स्लाइसिंग वी यूज कोलन ऑपरेटर. ठीक है, स्लाइस ऑपरेटर, रेंज ऑपरेटर भी उसको बोलते हैं, कोलन ऑपरेटर. सो व्हाइल एक्सेसिंग द वेक्टर एलिमेंट्स यू कैन स्पेसिफाई रेंज ऑफ इंडेक्सेस. ठीक है, assume that, don't discuss, otherwise sit on separate bench. Range index, assume that one vector consists of 100 elements. एक वेक्टर के अंदर 100 एलिमेंट्स है. ठीक है, और मुझे क्या करना है कि इंडेक्स नंबर 10 से लेकर इंडेक्स नंबर 50 तक सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है. इंडेक्स नंबर 10 का भी एलिमेंट एक्सेस करना है, 11, 12, 13, 14 अप टू 50 तक एक्सेस करना है. तो आपको पता है कि अगर आपको जिस इंडेक्स का एलिमेंट एक्सेस करना है वो इंडेक्स लिखना होता है, तो क्या आप वो सारे इंडेक्स लिखते बैठोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर? नो नीड टू राइट द इंडेक्सेस. यू कैन यूज दिस रेंज और स्लाइस ऑपरेटर व्हिच इज कोलन. जस्ट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन एंड इंडेक्स. ठीक है, रेंज ऑफ वैल्यूज. ठीक है, उस रेंज के सारे इंडेक्स के सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे. ठीक है, सो एग्जांपल दिया है यहाँ पे A is equal to C of 10, 20, 30, 40, 50, 60. So 6 elements are there in this vector A. मुझे क्या करना है? इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक सारे एलिमेंट्स एक्सेस करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? B is equal to A of 2 colon 4. अब यहाँ पे C फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप रेंज ऑपरेटर यूज कर सकते हो, रेंज स्लाइस ऑपरेटर. ठीक है, सो कौन से वेक्टर के एलिमेंट एक्सेस करना है? A वेक्टर के एलिमेंट एक्सेस करना है. कौन से एलिमेंट एक्सेस करना है? स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 2 टू इंडेक्स नंबर 4. So 2 colon 4. So this is the range or slice operator. ठीक है, so इस वेक्टर के सारे जो एलिमेंट्स है इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक वो स्टोर हो जाएंगे बी वेक्टर में. और लेटर आपने बी प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा? 20, 30, 40. ठीक है, सो 2 इंडेक्स नंबर 2 देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है. इंडेक्स नंबर 1 10 इज स्टोर्ड एट इंडेक्स नंबर 1. ठीक है, मेक श्योर दैट कि आर प्रोग्रामिंग में इंडेक्स 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट नहीं होता.
है ना, सी लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होता है. न्यू स्टूडेंट्स की मैं बोल रहा हूँ स्टेटमेंट. इन आर प्रोग्रामिंग इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम नंबर 1 नॉट फ्रॉम 0. सो पहला एलिमेंट जो 10 है कौन से इंडेक्स पे स्टोर है? इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर है. 20 का इंडेक्स क्या है? इंडेक्स नंबर 2. 30 का इंडेक्स नंबर क्या है? इंडेक्स नंबर 3. 40 का इंडेक्स क्या है? 4 एंड सो ऑन. तो मुझे ए वेक्टर के कौन से एलिमेंट स्कैन एक्सेस करना है? इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक. सो इंडेक्स नंबर 2 मींस 20, 30 एंड 40. These three elements will get stored in B variable. Later, if you print B, it will display 20, 30, and 40. Okay? That's all. Here we discuss about all the concepts of vectors. Okay? In next lecture, we'll discuss about next data structure, which is list. Okay? Now, before that, we'll solve practical assignment now based on vectors. Okay? So, आपके लैब बुक में एक सेपरेट प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है विच इज बेस्ड ऑन वेक्टर एंड लिस्ट. ठीक है, तो सिर्फ वेक्टर के प्रोग्राम आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. और स्लिप्स, फाइनल जो प्रैक्टिकल स्लिप्स है आपके 30 स्लिप्स है टोटल. आई थिंक 4 to 5 स्लिप कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स ऑन वेक्टर्स. 4 to 5 स्लिप्स आर देयर आउट ऑफ 30. ठीक है, which consist of programs on vectors. ठीक है, so we'll go through that programs. तो देखो योर प्रैक्टिकल असाइनमेंट 4. ठीक है, आज आपका प्रैक्टिकल है ना. लैब बुक सर ने दिया है आपको, कुंजी सर ने. ओके, ठीक है. आप प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है? ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. हमारे जो जितने भी सारे एक्सरसाइज है लास्ट चैप्टर तक, आर प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्राम्स है मैक्सिमम 8 to 10 लाइंस के, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, अभी तो बहुत सिंपल पार्ट चल रहा है. वो भी प्रोग्राम 3-4 लाइन की है, 3-4 मैक्सिमम 10 लाइन के प्रोग्राम है. लास्ट चैप्टर हमारा जितना भी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है वो भी प्रोग्राम मैक्सिमम 10 से 12 लाइन तक ही है, उसके ज्यादा नहीं है. ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा प्रैक्टिकल करने के लिए. ठीक है, आपको प्रैक्टिकल में अगर आपने डेली आधा घंटा भी दिया, 1 घंटा भी अगर आपने आर प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिस किया तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है. ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपको आज क्या करना है कि पहले 3 एक्सरसाइज जो इफ एल्स के प्रोग्राम है, ठीक है, लूप्स के प्रोग्राम है, वो आपको सॉल्व करना है. आपकी नोटबुक में आपने लिखा होगा. ठीक है, या तो फिर आप ठीक है आज ही मैं ग्रुप पे देता हूँ ये पीडीएफ फाइल इसका लैब बुक का. ठीक है, आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो. कुंजी सर आपको इस डिटेल बोलेंगे इसके बारे में. ठीक है, लैब बुक में आपको कैरी करना होता है लैब बुक लैब में. ठीक है, और हर एक प्रैक्टिकल स्लॉट में आपको ऐसे एक्सरसाइज सॉल्व करने होते हैं. जैसे कि सपोज असाइनमेंट नंबर 3 है, सपोज दिया हो आपका असाइनमेंट 3 चल रहा है, तो असाइनमेंट 3 के जो भी प्रोग्राम्स है, प्रैक्टिस सेट ए सेट बी आपको सॉल्व करना होता है लैब में. सेट सी कंपलसरी नहीं है. ठीक है, ठीक है, आप ये घर पे सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप बाद में सब्जेक्ट टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हो. प्रैक्टिस सेट भी आप घर पे सॉल्व कर सकते हो, लैब में नहीं करना है आपको. लेकिन सेट ए और सेट बी मैंडेटरी है लैब के अंदर सॉल्व करना. और प्रैक्टिकल स्लिप में जो क्वेश्चन है वो सेट ए और सेट बी के होने वाले. ठीक है, तो देखो इस सेट ए में 3 क्वेश्चन है, सेट बी में 5 क्वेश्चन है. सो ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन इन कंप्यूटर लैब. ठीक है, और ये सारे प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किए ऑलरेडी आपको. एक्सरसाइज नंबर 3 तक. ठीक है, तो जैसे ही अभी कुंजी सर आपको सर्कुलेट करेंगे पीडीएफ फाइल लैब बुक का. भी मेरे पास सिर्फ बिग डेटा का है, आपका प्रैक्टिकल डेटा स्ट्रक्चर और बिग डेटा, और एक है ना प्रैक्टिकल पीएचपी भी है आपका ना, पीएचपी. तो सर कंबाइन जो सेपरेट पीडीएफ है कंबाइन करके सर देने वाले आपको, तो उसका आपको प्रिंट निकालना है. ठीक है, एक बुकलेट क्रिएट होगा आपका. हर एक लैब बुक में जैसे सपोज असाइनमेंट नंबर 4 है सपोज वेक्टर एंड लिस्ट, तो उसका नोट्स यहाँ पे दिया है, रेफरेंस नोट्स. पहले नोट्स का स्टडी आप कर सकते हो और उसके बाद आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है. ठीक है, ठीक है. प्रैक्टिस सेट में क्या दिया है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन है राइट आर प्रोग्राम टू क्रिएट अ वेक्टर ऑफ स्पेसिफाइड टाइप एंड लेंथ, क्रिएट अ वेक्टर ऑफ न्यूमेरिक कॉम्प्लेक्स लॉजिकल कैरेक्टर टाइप्स ऑफ लेंथ 6. प्रैक्टिस सेट में आपको सिंपली वेक्टर को क्रिएट करके देखना है. ठीक है, वेक्टर हाउ यू कैन क्रिएट वेक्टर्स.
सी फंक्शन का यूज करके एंड ट्राई टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर. इंटीजर वेक्टर क्रिएट करके देखो, लॉजिकल वेक्टर क्रिएट करके देखो, कैरेक्टर वेक्टर. सो सिंपल है, a इज इक्वल टू सी ऑफ देन पास द एलिमेंट दैट वेक्टर विल बी क्रिएटेड. अगर न्यूमेरिक वेक्टर क्रिएट करना है तो a इज इक्वल टू सी ऑफ 1 2 3 4 और एनी नंबर यू कैन स्पेसिफाई, न्यूमेरिक वेक्टर गेट क्रिएटेड. अगर आपको कैरेक्टर वेक्टर क्रिएट करना है, सपोज कैरेक्टर वेक्टर ऑफ सिटी, so you can write b is equal to c of Pune, Mumbai, Nasik, Nagar. You can write in double quote. Character vector gets created. Logical vector create करना है तो logical means क्या होता है, true और false value, है ना. तो सपोज मुझे c वेक्टर क्रिएट करना है, c is equal to c of true, false, false, true, true. Any number of true, false value can specify. Logical vector get created. ठीक है. तो प्रैक्टिस सेट का पर्पस क्या है अभी यहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं. ठीक है. अभी आपको अच्छे से पता है कि क्योंकि मैंने सारा डेमो भी आपको दिया है, हाउ टू क्रिएट वेक्टर्स एंड हाउ टू परफॉर्म ऑल द ऑपरेशंस. तो ये राइट आर प्रोग्राम टू ऐड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड टू वेक्टर्स ऑफ इंटीजर्स ऑफ लेंथ 3. दो इंटीजर वेक्टर के ऊपर ऑफ लेंथ 3 आपको क्या ऑपरेशन करना है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो मैंने आज ही आपको करके दिखाया है. ठीक है. वेक्टर अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है. देन थर्ड, तो लिस्ट के ऊपर है तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ये वेक्टर और लिस्ट का है तो यही बाद में आएगा. ठीक है. ओके. सेट ए का पहला क्वेश्चन, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज आल्सो अवेलेबल इन द फाइनल प्रैक्टिकल स्लिप. राइट आर प्रोग्राम टू सॉर्ट अ वेक्टर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. आर प्रोग्राम टू क्रिएट टू सॉर्ट vector in ascending and descending order. So for this question, first you are supposed to create the vector of length n. n number आपको पहले वेक्टर के अंदर स्टोर करना है. ठीक है. Once you create a vector and while creating vector you are supposed to accept the element from the user. User से accept करना है numbers. Directly create नहीं करना कि a is equal to c of and then specify the number. No. First create the vector and while creating the vector accept the element from the user as the input. User जो भी input देगा वो vector में store होना चाहिए. Once you create a vector, then later what is the expected output of the script? The script should display the vector elements in ascending and descending order. So can you tell me which function is used to sort the vector? Sort function, है ना. Name itself is a function sort. और decreasing order में चाहिए तो सेम फंक्शन सॉर्ट, बस आपको पैरामीटर देना है डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू. ठीक है. सो विल राइट अ स्क्रिप्ट हियर, न्यू स्क्रिप्ट. ठीक है. सो देखो यहाँ पे क्या करना है कि वेक्टर पहले क्रिएट करना है, लेकिन वेक्टर क्रिएट करते समय आपको एलिमेंट जो है यूजर से लेना है इनपुट. जब प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करोगे, so enter first number, enter second number, enter third number up to n times it should repeat. n numbers आपको स्टोर करना है वेक्टर्स में. ठीक है. so first I am accessing the value of n from the user कि how many elements do you want to store in vector. रन टाइम पे डिसाइड होगा कितने एलिमेंट्स स्टोर करना है वेक्टर के अंदर. ठीक है. सो जब आप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करोगे तो पहला स्टेटमेंट आएगा हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू स्टोर इन वेक्टर. कितने नंबर्स आपको वेक्टर में स्टोर करना है. सो आपको इनपुट देना पड़ेगा 4 5 डिपेंड्स ऑन यू. आपको अगर 10 नंबर स्टोर करना है एलिमेंट्स तो आप इनपुट दोगे 10. तो 10 कहां पे स्टोर हो जाएगा, इस n वेरिएबल में. जो भी इनपुट पहले दोगे, आप जितने भी नंबर्स आपको वेक्टर में स्टोर करना है वो डिसाइड करना है पहले. वो इनपुट देना, वो इनपुट कहां पे आएगा, n वेरिएबल में. ठीक है. सो n इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, मुझे n का वैल्यू एक्सेप्ट करना है यूजर से, तो रीड लाइन फंक्शन. हां, रीड लाइन इज अ इनपुट फंक्शन. सो n इज इक्वल टू रीड लाइन. जब मैं इनपुट एक्सेप्ट करूंगा तो मुझे एक मैसेज भी डिस्प्ले करना है, हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू स्टोर इन अ वेक्टर. सो आई कैन डू दैट बाय यूजिंग प्रॉम्प्ट मेथड. प्रॉम्प्ट इक्वल टू, जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे लिखना है, हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू वांट टू स्टोर. ठीक है. सो अगर मैंने
यहाँ पे 10 इनपुट किया तो 10 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, लेकिन that 10 will get stored as a character values. By default read line function accept in the input in the form of characters. तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे इंटीजर के फॉर्म में स्टोर करना है इनपुट, रीड लाइन फंक्शन वो पास करना पड़ेगा एज डॉट इंटीजर फंक्शन को, एज डॉट इंटीजर, ये ओपनिंग ब्रैकेट लास्ट में क्लोज करना है राउंड ब्रैकेट, लास्ट में डबल ब्रैकेट आ गया। चलेगा, हाँ okay, so n is equal to, is it visible to you students, as dot integer read line prompt is equal to how many numbers, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मैसेज यहाँ पे, कितने नंबर्स आपको स्टोर करना है वेक्टर के अंदर, वो आ जाएगा n वेरिएबल में, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, पहले हमको एक एम्प्टी वेक्टर क्रिएट करना है, एम्प्टी वेक्टर, बाद में हम उस वेक्टर में n नंबर स्टोर करने वाले वन बाय वन। फर्स्ट विल एक्सेप्ट द फर्स्ट नंबर, विल स्टोर इन दैट एम्प्टी वेक्टर, ठीक है। सो एम्प्टी वेक्टर कैसे क्रिएट करें, a इज इक्वल टू, मुझे वेक्टर a क्रिएट करना है, इनिशियली उस वेक्टर में एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा, मुझे सिर्फ इंडिकेट करना कि ये जो a वेरिएबल है वो वेक्टर वेरिएबल है, ठीक है। सो a इज इक्वल टू c ऑफ एम्प्टी ब्रैकेट्स, ठीक है। a क्या है, वेक्टर वेरिएबल, इनिशियली वेक्टर के अंदर कितने एलिमेंट्स है, इट्स एम्प्टी, 0 एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ i इज इक्वल टू 1, तो मुझे अभी क्या करना है, n नंबर्स, एज्यूम करो कि n का वैल्यू अगर 5 है, मैंने 5 इनपुट किया, मुझे 5 नंबर स्टोर करना है वेक्टर के अंदर, तो मुझे क्या करना है, अभी एक व्हाइल लूप यूज करना है, दैट व्हाइल लूप विल एग्जीक्यूट n टाइम्स, दैट व्हाइल लूप विल एक्सेप्ट n नंबर्स फ्रॉम द यूजर, दोस n नंबर्स विल गेट स्टोर इन वेक्टर a, है ना। n का वैल्यू अगर 5 है तो मुझे 5 वैल्यूज एक्सेप्ट करना पड़ेगा यूजर से, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर, एंड दिस शुड रिपीट 5 टाइम्स। तो उसके लिए क्या चाहिए, लूप, बिकॉज़ लूप इज अ repetitive control structure, some logic will get execute repeatedly, तो मुझे यहाँ पे while loop यूज करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ while loop। अब ये while loop कितने टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए, n टाइम्स, क्योंकि मुझे n नंबर्स एक्सेप्ट करना है। तो इस कंडीशन का लिखना पड़ेगा while i लेस देन और इक्वल टू n, जब तक कि i का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n है तब while loop एग्जीक्यूट होते रहेगा। इनिशियली वेरिएबल i का इनिशियल वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। So inside the while loop, you should increase the value of I by 1. So I become 2, then 3, then 4. और जब I का वैल्यू एक्सीड्स हो जाएगा n से, तो while loop टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। So initially first time this while loop will get execute, क्योंकि I वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू 1 है और 1 के लिए कंडीशन ट्रू है, ठीक है। Then we are supposed to accept the element from the user. जब while loop फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो पहला एलिमेंट यूजर से एक्सेप्ट करना है, while loop सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तो सेकंड एलिमेंट यूजर से एक्सेप्ट करना है। तो जो भी एलिमेंट आप इनपुट दोगे कहां पे स्टोर करना है, ई वेरिएबल में, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू, इनपुट लेना है, सो अगेन रीड लाइन फंक्शन, सो एज डॉट इंटीजर
read line prompt equal to enter any element. Or simply I can write a of I is equal to as dot integer read line prompt enter any element. ठीक है, तो ये क्या है, रीड लाइन फंक्शन है. रीड लाइन फंक्शन इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द यूजर. जब इनपुट एक्सेप्ट होगा तो पहले डिस्प्ले होगा मैसेज एंटर एनी एलिमेंट. सो एज्यूम करो कि मैंने पहला एलिमेंट 10 इनपुट किया है. 10 टाइप किया कीबोर्ड से, तो 10 कहां पे स्टोर हो जाएगा, a of I लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा. मींस वेक्टर a में एट इंडेक्स नंबर 1 मींस पहला एलिमेंट का इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है. सो फर्स्ट एलिमेंट का हो जाएगा स्टोर a वेक्टर में. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जस्ट increase the value of I by 1. I is equal to I plus 1. इससे क्या हो जाएगा, I becomes 2. And then end of the while loop. So this while loop will execute n times. It will access n numbers from the user. Those n numbers will be stored in vector A at different indexes. ठीक है, तो देखो पहला नंबर इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर होगा. Then I वेरिएबल का वैल्यू 2 हो जाएगा end of the while loop. So while loop will execute second time. Second time again input will be accept from the user enter any number. तो second element मैंने सपोज 25 इनपुट किया है, तो 25 कहां पे स्टोर हो जाएगा, a of I इंडेक्स पे. और I का वैल्यू क्या है अभी 2 है. तो सेकंड इंडेक्स पे वो नंबर स्टोर हो जाएगा a वेक्टर में. एंड दिस विल रिपीट n टाइम्स. एनी डाउट अप टू दिस? ओके. तो व्हेन दिस व्हाइल लूप विल टर्मिनेट वेक्टर a विल बी क्रिएटेड हियर. वेक्टर a क्रिएट हो जाएगा. अभी सिंपली क्या करना है, उस वेक्टर को सॉर्ट करना है. ठीक है, प्रोग्राम किस पर्पस के लिए लिखना है, आप यहाँ पे वेक्टर के एलिमेंट्स असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है. ठीक है, सो नाउ विल डिस्प्ले द एलिमेंट आफ्टर क्रिएटिंग द वेक्टर. मींस आफ्टर दिस व्हाइल लूप नाउ विल डिस्प्ले द एक्सपेक्टेड आउटपुट बाय यूजिंग कैट फंक्शन. मुझे क्या करना है अभी यहाँ पे, पहले वेक्टर के सारे एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है. तो /n वेक्टर एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद मुझे क्या करना है, वेक्टर के एलिमेंट सॉर्ट करना है. तो कैसे कर सकता हो, कैसे करना है वेक्टर के एलिमेंट सॉर्ट? डायरेक्टली यू कैन यूज रेडीमेड फंक्शन अवेलेबल इन आर विच इज सॉर्ट फंक्शन. उसको कॉल कर दो, सिर्फ सॉर्ट फंक्शन को कॉल करना है. और किसको सॉर्ट करना है, वेक्टर ए को सॉर्ट करना है. दैट्स ऑल. दिस स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर ए इन असेंडिंग ऑर्डर. एंटर. अभी वेक्टर के एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में भी डिस्प्ले करना है. सो विल राइट सेकंड आउटपुट स्टेटमेंट बाय यूजिंग कैट फंक्शन. कैट फंक्शन क्या कर देगा, आउटपुट को डिस्प्ले कर देगा. कैट वेक्टर एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इक्वल टू. So as it is the message will be displayed. डबल कोट में लिखा है तो as it is string will get displayed. डबल कोट कॉमा. अभी मुझे क्या करना है, काय कुठं, हाँ ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. ते आउटपुट में तसं दिसेल, त्याचा काही इश्यू नाही एवढा. ठीक है, ठीक है. अभी वेक्टर के एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सेम फंक्शन कॉल करना है, सॉर्ट फंक्शन. कौन से एलिमेंट को सॉर्ट करना है, वेक्टर ए के एलिमेंट. लेकिन कैसे चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए. तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा सेकंड पैरामीटर, डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू. डिक्रीजिंग इज इक्वल टू DECREASING. स्पेलिंग मिस्टेक विल बी एरर, तो यहाँ पे चेक करना पड़ेगा थोड़ा स्पेलिंग. डिक्रीजिंग इज इक्वल टू, यहाँ पे ट्रू लिखना है, बुलियन वैल्यू.
सो कैपिटल में लिखना है TRUE, मेक श्योर दैट कि बुलियन वैल्यूज ओनली यू कैन राइट इन कैपिटल लेटर्स, ट्रू और फॉल्स अगर आपको आर प्रोग्रामिंग में लिखना है तो कैप्स में ही लिखना है सिर्फ। दैट्स ऑल, एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, काउंट करो कितने लाइन से प्रोग्राम के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंस्ट्रक्शंस ओनली। ठीक है, लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको ये 15 मार्क के लिए प्रोग्राम है शायद, स्लिप में जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सो फर्स्ट विल सेव द स्क्रिप्ट। How to save this program? You can give any name to the program, but the extension must be .r. ठीक है, save this program, and in order to execute, from file you are supposed to select source R code. डेस्कटॉप पे मैंने प्रोग्राम सेव किया है vectorsort.r। देखो प्रोग्राम रन हो रहा है। सो पहले स्टेटमेंट डिस्प्ले हो रहा है हाउ मेनी नंबर्स, आपको वेक्टर के अंदर कितने नंबर स्टोर करना है। सो आई वांट टू स्टोर 5 नंबर्स। सो ये यहाँ पे मैंने इनपुट दिया है 5, दिस 5 विल गेट स्टोर इन n वेरिएबल। प्रोग्राम में पहला इंस्ट्रक्शन लिखा है n इज इक्वल टू, है ना, तो ये 5 कहाँ पे स्टोर हुआ, n वेरिएबल। अभी उसके बाद हमने while लूप लिखा है, while I less than or equal to n, so that while loop will now will execute n times, means 5 times। अभी एक while loop 5 times execute होगा, that while loop will accept 5 numbers from the user। वो सारे 5 numbers कहाँ पे स्टोर होने वाले, a वेक्टर में। सो पहला नंबर में यहाँ पे दे रहा हूँ 4, दूसरा नंबर 8, तीसरा नंबर -6, चौथा नंबर है 56 एंड फिफ्थ नंबर इज 23। तो ये 5 नंबर मैंने इनपुट दिया। अभी 5 बार एग्जीक्यूट होगा while loop, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो व्हेन आई प्रेस एंटर, directly output get displayed, vector elements in ascending order। देखो ascending order में smallest to largest, -6 4 8 23 56। all these elements are available in vector A में store हुए सारे elements। and second output, elements in descending order, largest to smallest, 56 23 8 4 and -6। ठीक है, so any doubt in this program students? ठीक है, write down this program in notebook, write it down।
गणेश एकच मिनिट गणेश गणेश ठीक है, और सिर्फ प्रोग्राम मत लिखो, तो थोड़ा क्वेश्चन भी लिखो कि वेक्टर सॉर्टिंग का प्रोग्राम है, समथिंग शॉर्ट में लिख सकते हो। तो आप जब बाद में घर पे रिफर करोगे प्रोग्राम, तो किस पर्पज के लिए प्रोग्राम लिखा वो समझ में आना चाहिए। हालांकि इससे समझ में आ जाएगा आपको लास्ट 2 स्टेटमेंट से। प्रोग्राम फॉर वेक्टर सॉर्टिंग ऐसा भी शॉर्ट में कहीं ना कहीं लिख लो। स्क्रिप्ट फॉर वेक्टर सॉर्टिंग। और देखो अभी प्रोग्राम ध्यान में रखना कितना सिंपल है। अभी इस प्रोग्राम का ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये 2 इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूं उसमें ये जो पार्ट है इतना सेम एज इट, इसमें कुछ भी चेंज मैं नहीं करने वाला हूं। ये जो प्रोग्राम है सेम एज इट इज, क्योंकि ये जो पार्ट है दिस पार्ट ओनली क्रिएट द वेक्टर्स बाय एक्सेप्टिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम द यूजर। कौन से भी वेक्टर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले आपको वेक्टर क्रिएट करना है, एंड दिस इज लॉजिक टू क्रिएट अ वेक्टर। नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें पहले वेक्टर क्रिएट करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो भी लास्ट 2 लाइन में आ जाएगा उसका लॉजिक। रेडीमेड फंक्शन कॉल करके हम वो टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो एक्चुअली आपको सिर्फ लास्ट 2 स्टेटमेंट रिमेंबर करना है। ये पार्ट तो सेम है सारे वेक्टर प्रोग्राम के लिए इतना, ठीक है। सो इसके बाद का जब प्रोग्राम लिखोगे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट लॉजिक लिखो, ये वापस लिखने की जरूरत नहीं है। मीन अगर आपने आज एक प्रोग्राम प्रिपेयर किया तो आपके सारे वेक्टर के प्रोग्राम प्रिपेयर हो गए, ठीक है। सिर्फ आपको ये लास्ट 2 लाइंस, लास्ट 3 to 4 लाइन ध्यान में रखना है हर एक प्रोग्राम का सिर्फ, ठीक है। तो ये लॉजिक कितना सिंपल है, देखो यहाँ पे पहले हमने n का वैल्यू एक्सेप्ट किया, कितने नंबर स्टोर करना है वेक्टर में, ठीक है। और वो नंबर्स हमको वेक्टर ए में क्रिएट करना है, तो पहले हमने यहाँ पे इनिशियली एम्प्टी वेक्टर क्रिएट किया है, a is equal to c of empty brackets वेक्टर यू कैन क्रिएट बाय यूजिंग c फंक्शन, लेकिन यहाँ पे एक भी एलिमेंट स्पेसिफाई किया नहीं किया है ब्रैकेट के अंदर, तो एम्प्टी वेक्टर क्रिएट हो गया है कौन से नाम का, एक नाम का। तो इस a वेक्टर में हमको n नंबर स्टोर करना है, तो n नंबर स्टोर करने के लिए व्हाइल लूप n टाइम एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए a वेरिएबल i वेरिएबल यूज किया है, i is equal to 1, और व्हाइल लूप में सिंपल कंडीशन दिया है व्हाइल i लेस देन और इक्वल टू n। तो जब तक i का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n है तब तक व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा, और n i का वैल्यू हम एक से इंक्रीज कर रहे हैं। इनिशियली i विल बी 1, सेकंड टाइम i विल बी 2, थर्ड टाइम i विल बी 3 एंड सो ऑन, ठीक है। So it is clear that this while loop will get executed n times only, not more than n times. So when this while loop execute first time, the value of I is 1. When while loop execute first time, आपको पहला नंबर इनपुट देना है। So enter any number in any element. Suppose मैंने 5 इनपुट किया, suppose, तो that 5 will get stored in this vector A। जो हमने empty vector create किया था A, उस वेक्टर में स्टोर हो जाएगा नंबर, लेकिन कहाँ पे स्टोर होगा, ith इंडेक्स पे, और I का इनिशियल वैल्यू क्या है 1। So इंडेक्स नंबर 1 पे पहला नंबर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। Then while loop execute second time, but when while loop execute second time, the value of I get increased to 1, 1 become 2, ठीक है। तो second number when while loop execute second time, suppose second number you enter 2 or 7, so where that 7 will be stored in this vector A, empty vector में स्टोर होगा, लेकिन कहाँ पे, इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर होगा। इंडेक्स नंबर 1 पे हमने ऑलरेडी पहला नंबर स्टोर किया है, इंडेक्स नंबर पे 2, तो ऐसे n टाइम्स रिपीट होगा, n नंबर्स विल गेट स्टोर इन A वेक्टर, और बाद में हमको क्या करना है, सिर्फ A वेक्टर को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट फंक्शन यूज किया है A वेक्टर की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट an R program to find some mean and product of a vector.
सम एंड मीन वी कैन इजीली कैलकुलेट, बट प्रोडक्ट फंक्शन के लिए फंक्शन चेक करना पड़ेगा है कि नहीं. ठीक है. So write R program to find sum, mean and product of a vector. So for this program again, create a vector A by accepting the elements from the user. एक वेक्टर क्रिएट करना है, उसके अंदर सेवरल एलिमेंट्स आपको स्टोर करना है. एक बार आपने वेक्टर क्रिएट किया तो क्या करना है, यू आर सपोज टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर. उस वेक्टर में जितने भी एलिमेंट्स है उस सारे नंबर्स का सम करके डिस्प्ले करना है. ठीक है, सम ऑफ वेक्टर एलिमेंट्स. उसके लिए एक स्टैंडर्ड फंक्शन अवेलेबल है आर प्रोग्रामिंग में, सम नाम का. सम फंक्शन, द नेम इटसेल्फ इज अ फंक्शन अवेलेबल इन आर व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स. सम फंक्शन को सिर्फ आपको वेक्टर का नाम पास करना है. दैट फंक्शन विल कैलकुलेट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर एंड देन सम रिटर्न द वैल्यू रिजल्ट. Then in R there is one more function available called as mean function. ठीक है, the name of the function itself is mean. Mean is what, nothing but the average of n numbers. Assume करो कि वेक्टर में 4 नंबर स्टोर किए. Mean means what, sum of all those 4 numbers divided by 4 is nothing but the mean value. ठीक है, वेक्टर के अंदर सपोज 10 numbers available है. So what is the mean of that vector? Sum of all those 10 numbers divided by 10. Whatever the result is nothing but the mean value of that vector. तो आपको कैलकुलेट करना नहीं, फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है आर प्रोग्रामिंग में. सम नाम का फंक्शन है और मीन नाम का ऑलरेडी फंक्शन है. मीन फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट मीन ऑफ अ वेक्टर. सम वेरिएबल इज यूज्ड, सम फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर्स. प्रोडक्ट के लिए ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इफ फंक्शन एग्जिस्ट आई विल टेल यू टुमारो. अदरवाइज सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई वेक्टर ए विद द एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर ए. जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है आप यूज करके प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं. हम सर को बोलता हूँ आज, क्योंकि सर के पास कंबाइन लैब बुक है सबका, सब डीएस पीएचपी और आर प्रोग्रामिंग का, तो देंगे. मेरे पास फिलहाल अभी सिर्फ बिग डेटा का है आर. ठीक है, आर का तो दे देता हूँ मैं, कंबाइन सर देने होंगे. ठीक है, सो सेम प्रोग्राम. देखो यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ. पहले n का वैल्यू एक्सेप्ट किया और n नंबर्स वेक्टर में स्टोर कर दिए. वंस यू क्रिएट अ वेक्टर, क्या करना है, पहले सम ऑफ ऑल एलिमेंट डिस्प्ले करना है. ठीक है, सो फर्स्ट आउटपुट कैट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू. तो कैसे कैलकुलेट करें, सिंपली कॉल द फंक्शन कॉल्ड एज सम. और किसका एलिमेंट का सम करना है, वेक्टर ए का, तो वेक्टर ए पास करना है. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू सम. अगर आपको ओरिजिनल वेक्टर डिस्प्ले करना है तो आप कर सकते हो. आउटपुट में आप चेक कर सकते हैं कि सम बराबर कैलकुलेट हुआ या नहीं. ओरिजिनल वेक्टर इक्वल टू और सिंपली ए. सो all the elements of vector A will get displayed. और यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, sum of all those vector elements. उसके बाद थर्ड आउटपुट इज एक्सपेक्टेड मीन ऑफ वेक्टर A. सो मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ स्टेटमेंट टेस्ट. सम के बाद मीन भी कैलकुलेट करना है. सो मीन ऑफ और एवरेज ऑफ वेक्टर A इज इक्वल टू, और वो एवरेज वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए. तो उसके लिए फंक्शन है मीन. फंक्शन को किसका मीन कैलकुलेट करना है, वेक्टर ए का कैलकुलेट करना है. तो वेक्टर ए पास कर दो सिर्फ, दैट्स ऑल. ठीक है, तो सम और मीन डिस्प्ले हो जाएगा एंड ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है, सो आई सेव्ड द प्रोग्राम विद द सेम नेम. ठीक है, विल एग्जीक्यूट दैट प्रोग्राम. सो हाउ मेनी नंबर्स, वेक्टर में कितने नंबर स्टोर करना है. सो सपोज मुझे तीन नंबर स्टोर करना है वेक्टर के अंदर. ठीक है, सो नाउ दिस वैल्यू विल एग्जीक्यूट 3 टाइम्स व्हिच विल एक्सेप्ट 3 नंबर्स. पहला नंबर है 8, दूसरा नंबर 5 एंड 10, सॉरी 2. सो द आउटपुट इज ओरिजिनल वेक्टर इज इक्वल टू 8 5 2. 3 नंबर्स है वेक्टर के अंदर. सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स 15, 8 plus 2 10, 10 plus 5 15 and 15 divided by 3 is what,
5. So it is the mean of this vector A. ठीक है? PROD नाम का एक फंक्शन है, PROD to calculate product of a vector. So multiplication of all vector elements are calculated by this PROD function. ठीक है? So 8 into 10, 8 into 2, 10, sorry, 16 and 16 into 5, 80. नंबर से मल्टीप्लिकेशन होते हैं. ठीक है? So prod function है, prod function is there. So we'll modify the program. I think question में वही दिया है, calculate product, calculate sum, mean and product of a vector and product of all elements of a vector you can calculate by using PROD function. जैसे sum calculate कर सकते हैं sum function से, sum of all elements, उसी तरह हर एक element का multiplication कैसे calculate कर सकते हैं? There is a function called as PROD. ठीक है? So program में change करना पड़ेगा यहाँ पे. Write down this program, write it down. @n H. Add one more statement in the program. Product of vector elements is equal to, and you can calculate the product of vector elements by using PROD function. ठीक है? इतना ही लिखना है सिर्फ. बाकी का पार्ट ये जो है वो सेम ही है एज कंपेयर टू प्रीवियस प्रोग्राम. इसमें कुछ चेंज नहीं किया है यहाँ पर. Program to find sum, mean and product of a vector. Question of the program is, ठीक है? ठीक है, write down one question. Now this question is not there in the lab book, but this question is available in the final practical slip. Write down that question, and you are supposed to write that program over here only. Write down the question. Write R program. लिखो. Question lab book में नहीं है, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं ये आपके फाइनल प्रैक्टिकल स्लिप्स में है. ठीक है? राइट आर स्क्रिप्ट, राइट आर स्क्रिप्ट और आर प्रोग्राम, राइट आर प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी. ठीक है? Read the question and tell me for what purpose this program, what is the purpose of this program? Anybody? Yes. इनपुट क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, वैसे एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा. Yes, anybody? Anybody?
प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, इनपुट क्या देना है प्रोग्राम को और आउटपुट क्या होना चाहिए? यस विवेक, एक्सप्लेन की फॉर व्हाट पर्पस यू आर सपोज्ड टू राइट दिस प्रोग्राम। अगर इस प्रोग्राम को एक डेसिमल नंबर से 5 इनपुट किया तो क्या डिस्प्ले होना चाहिए? बाइनरी ऑफ 5। एंड व्हाट इज द बाइनरी ऑफ 5? 101। ठीक है, प्रोग्राम का आउटपुट होना चाहिए 101। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को 10 इनपुट दिया, सपोज 10 डेसिमल नंबर 10 इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम? डेसिमल नंबर 10 का बाइनरी क्या है? इट्स 1010, है ना? डेसिमल 10 मींस बाइनरी 1010। सो अगर इनपुट 10 दिया तो आउटपुट क्या आना चाहिए? बाइनरी नंबर 1010। ठीक है, सो थिंक एंड टेल मी हाउ यू कैन सॉल्व दिस। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट डेसिमल टू बाइनरी? ठीक है, डोंट डिस्कस एंड डोंट राइट, सी हियर द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। लॉजिक में एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्रोग्राम आपको खुद को लिखना है। ठीक है, इनपुट अगर 10 दिया सपोज, प्रोग्राम शुड एक्सेप्ट वन नंबर फ्रॉम द यूजर। प्रोग्राम में क्वेश्चन में दिया है एक्सेप्ट अ नंबर एंड डिस्प्ले इट्स, एक्सेप्ट अ डेसिमल नंबर एंड कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। तो इट इज क्लियर दैट कि इस प्रोग्राम को आपको एक नंबर इनपुट करना है, एनी नंबर यू कैन इनपुट, whether it is 5, 10, 25, 100। assume करो मैंने 10 दिया इनपुट, so the program should display binary equivalent of this 10। तो 10 का बाइनरी क्या है? 1010। तो कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू फाइंड? ठीक है, so how to convert decimal to binary? You are supposed to divide that decimal number by 2 repeatedly till that number becomes 0 and store the remainder somewhere for all the series of division. Finally those remainders you are supposed to write in reverse order, and that all the remainder in reverse order is nothing but the exact binary number। ठीक है, डेसिमल को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उस डेसिमल नंबर को किससे डिवाइड करना है? 2 से, नॉट बाय 3, 4 और 10। डिवाइड द डेसिमल नंबर बाय 2। और कितने टाइम डिवीजन परफॉर्म करना है? जब तक कि वो नंबर 0 नहीं होता तब तक रिपीटली करते जाना है। और हर डिवीजन का जो भी रिमाइंडर है, रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन यू आर सपोज्ड टू राइट समवेयर। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम, अभी मैं फर्स्ट टाइम इनपुट नंबर को डिवाइड कर रहा हूं 2 से, सो व्हेन 10 डिवाइडेड बाय 2 5, और रिमाइंडर क्या आएगा डिवीजन का? 0 आएगा। व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाय 2, रिमाइंडर क्या हो गया? 0, और नंबर मॉडिफाई हो गया 5। 10 हो गया, 10 का 5 हो गया। दिस क्वेश्चन पार्ट ऑफ द डिवीजन, दिस इज द रिमाइंडर पार्ट ऑफ द डिवीजन। तो क्या नंबर 0 बन गया? नहीं, 5 है। अगेन डिवाइड दैट नंबर बाय 2, रिमाइंडर 1। ठीक है, ये क्वेश्चन पार्ट डिवीजन का। 5 को अगर 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन पार्ट में 2 आएगा और रिमाइंडर में 1 आएगा। तो क्या जो न्यू क्वेश्चन पार्ट मिला वो 0 है? नहीं, और एक बार डिवाइड करो। When 2 divided by 2, question part is 1 and remainder part is 0। तो क्या जो मॉडिफाइड नंबर मिला वो 0 है? नहीं, और एक बार डिवीजन। सो क्या हम 1 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से? नो, सो क्वेश्चन पार्ट इज 0। वी कैन नॉट डिवाइड 1 by 2 और रिमाइंडर 1 एज इट इज। तो सारे डिवीजन का हमने क्या किया? रिमाइंडर स्टोर किया सब
तो बाद में क्या करना है, सारे रिमाइंडर रिवर्स में लिखना है, दैट इज इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर ऑफ द डेसिमल. सो पहले 1010. So this is the equivalent binary number of this 10. ठीक है. तो देखो यहाँ पे वेक्टर का कैसे यूज होगा. तो ये जो रिमाइंडर्स है, आपको क्या करना है, इनपुट नंबर को रिपीटेडली डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपको वेक्टर में स्टोर करना है. ये जो सारे रिमाइंडर है, अलग अलग डिवीजन जो आपने परफॉर्म किया है, सारे डिवीजन का रिमाइंडर आपको वेक्टर ए में स्टोर करना है. इनिशियली वेक्टर ए एम्प्टी होगा. ठीक है. जब आप पहला डिवीजन परफॉर्म करोगे, पहला रिमाइंडर मिलेगा, वेक्टर में स्टोर करो. फिर दूसरा डिवीजन का रिमाइंडर वेक्टर में स्टोर करो. तीसरे डिवीजन का रिमाइंडर वेक्टर में स्टोर करो. चौथा डिवीजन का रिमाइंडर वेक्टर में स्टोर करो. और बाद में वेक्टर के एलिमेंट्स रिवर्स में डिस्प्ले करना है सॉर्ट फंक्शन का यूज करके. सॉर्ट डिक्रीजिंग इज इक्वल टू ट्रू किया तो सारे रिमाइंडर्स वो वेक्टर का रिमाइंडर रिवर्स में डिस्प्ले हो जाएगा, एंड विच इज आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. लॉजिक क्लियर है. अभी ये जो डिवीजन है आपको कहां पे लिखना है, लॉजिक व्हाइल लूप में लिखना है, क्योंकि आपको डिवीजन एक बार नहीं परफॉर्म करना है, रिपीटेडली परफॉर्म करना है जब तक कि नंबर 0 नहीं होता तब तक. ठीक है. सो इट इज क्लियर है कि लूप इज रिक्वायर्ड. व्हाइल लूप में हम क्या करेंगे, ये जो डिवीजन है सीरीज ऑफ डिवीजन परफॉर्म करके रिपीटेडली, और हर डिवीजन का रिमाइंडर है एरे में स्टोर करना है, एरे में नहीं वेक्टर में स्टोर करना है. और व्हाइल लूप टर्मिनेट होने के बाद वेक्टर के एलिमेंट्स रिवर्स में डिस्प्ले कर दो तो एग्जैक्ट बाइनरी नंबर डिस्प्ले हो जाएगा. ठीक है. सो विल राइट द प्रोग्राम हियर. विद इन 5 मिनट्स हो जाएगा प्रोग्राम. सिंपल सा प्रोग्राम है. न्यू स्क्रिप्ट. ठीक है. सो पहले क्या करना है, यूजर से एक नंबर एक्सेप्ट करना है, डेसिमल नंबर यूजर से एक्सेप्ट करना है. दैट नंबर विल स्टोर इन एन वेरिएबल. तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, एन नंबर स्टोर करना है एन वेरिएबल में. सो एन इक्वल टू एज डॉट इंटीजर रीड लाइन prompt equal to enter any number. नंबर कहां पे आ जाएगा, एन वेरिएबल में. डेसिमल नंबर एन में आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद हमको एक क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए. वेक्टर में हमको सारे रिमाइंडर स्टोर करना है. So we require a vector. Initially that vector will be empty vector. So a is equal to c of empty brackets. इस वेक्टर में हमको रिमाइंडर स्टोर करना है डिवीजन का. ठीक है. We're supposed to perform division now repeatedly. So while loop is required. क्योंकि एक ही डिवीजन नहीं परफॉर्म करना है, मल्टीपल डिवीजन परफॉर्म करना है. तो कब तक डिवीजन परफॉर्म करना है, जब तक हमारा जो एन नंबर है वो 0 से ग्रेटर है तब तक, 0 से ज्यादा है तब तक. as soon as the number becomes 0 while loop should get terminate. और हम जब नंबर डिवाइड करते जाएंगे तो रिड्यूस होता जाएगा. 2 का 5, 5 का 2, 2 का 1, 1 का 0, कभी ना कभी तो 0 हो जाएगा, कंफर्म है. ठीक है. सो व्हाइल कंडीशन क्या है यहाँ पे, व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0. जब तक n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक व्हाइल लूप रिपीट करते रहो, है ना. इनिशियली हमारा इनपुट नंबर 10 था, 10 का हो गया 5 ग्रेटर देन 0 है, 5 का हो गया 2 ग्रेटर देन 0 है, 2 का हो गया 1 ग्रेटर देन 0. तो ये रिपीट होता रहेगा, लेकिन जब 0 होगा n का वैल्यू स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस. सो द नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस व्हाइल लूप इज व्हाइल n ग्रेटर देन 0. ठीक है. तो पहले क्या करना है कि नंबर n को डिवाइड करना है 2 से, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन व्हाट, रिमाइंडर. और रिमाइंडर कहां पे स्टोर करना है, वेक्टर में. सो a ऑफ i इक्वल टू मींस वेक्टर में पहला इंडेक्स पे एक नंबर स्टोर करना है. तो क्या हमने i वेरिएबल यूज किया इससे पहले, नहीं किया है. तो पहले हम i वेरिएबल का वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे कि i वेरिएबल का वैल्यू इनिशियल वैल्यू 1 है. मींस पहला रिमाइंडर जो होगा वो इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर होगा वेक्टर a में. ठीक है. सो वेक्टर a में पहले इंडेक्स पे क्या स्टोर करना है, इनपुट नंबर जो भी है हमारा उसको 2 से डिवाइड करना है, और उसका रिमाइंडर डिवीजन का रिमाइंडर चाहिए. हाउ वी कैन ऑब्टेन द रिमाइंडर. रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर है, परसेंट. किसको किससे डिवाइड करना है, नंबर n इनपुट नंबर को डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है. तो द इंस्ट्रक्शन इज a of i is equal to n mod 2.
इससे क्या हो जाएगा, इनपुट नंबर सपोज n इज इक्वल टू 10 है, 10 को डिवाइड होगा 2 से, और उस डिवीजन का रिमाइंडर क्या है 0, 0 कहां पे स्टोर होगा, वेक्टर ए में स्टोर होगा। इनिशियली वेक्टर ए क्या है, एम्प्टी, इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो एक बार आपने डिवाइड कर लिया तो उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर को मॉडिफाई करना। अभी यहां तक तो नंबर 10 ही है, n का वैल्यू 10 ही है अभी यहां तक। अभी नेक्स्ट टाइम क्या करना है, हमको 5 को डिवाइड करना है 2 से। तो पहले n का वैल्यू मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू कैसे मॉडिफाई करें, इक्वेशन पार्ट चाहिए हमको। तो n इक्वल टू n डिवाइडेड बाय, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। फ्लोर डिवीजन वेयर इंटरेस्ट ओनली द डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर नहीं चाहिए, तो फ्लोर डिवीजन 2 से डिवाइड करो। सो एक्चुअली दिस इंस्ट्रक्शन विल मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ n। यहां तक तो 10 ही है, नेक्स्ट टाइम हमको 10 को डिवाइड नहीं करना है वापस, नेक्स्ट टाइम 5 को डिवाइड करना है। तो 5 कैसे मिलेगा, सो n इज इक्वल टू n फ्लोर डिवीजन 2। ठीक है, एंड देन व्हेन व्हाइल लूप विल गेट एग्जीक्यूट नेक्स्ट टाइम, सेकंड रिमाइंडर जो भी मिलेगा वो कहां पे स्टोर करना है, इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर करना है। तो इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ i बाय 1, i is equal to i plus 1, so that when while loop will execute next time, second remainder whatever you will get, it will be stored at ith index, next index पे स्टोर होते रहेगा। एंड दैट्स ऑल, दिस इज द एंड ऑफ द व्हाइल लूप। यही लॉजिक रिपीट करना है n टाइम्स, n टाइम नहीं, जब तक n का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तक। ठीक है, so this while loop will execute or divide n by 2, all the remainders will get stored in a. When this while loop terminates, all the remainders will be there in vector a. अभी बाइनरी नंबर डिस्प्ले करने के लिए क्या करना है, सिर्फ वेक्टर ए के जो भी रिमाइंडर एलिमेंट्स वो रिवर्स में डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो नाउ दिस स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द फाइनल आउटपुट। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूं आउटपुट स्लैश n बाइनरी नंबर इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद वो बाइनरी नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। तो बाइनरी नंबर डिस्प्ले करने के लिए क्या करना है, सिंपली जो वेक्टर के ए के अंदर जितने भी रिमाइंडर स्टोर करे किए है वो रिवर्स में डिस्प्ले करना है। तो सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट करना है वेक्टर ए को, लेकिन कैसे सॉर्ट करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, डिक्रीजिंग नहीं, गलत हो जाएगा लॉजिक। डिक्रीजिंग नहीं, यहाँ पे रिवर्स फंक्शन यूज करना है, सॉर्ट नहीं रिवर्स। सॉर्ट फंक्शन यूज किया तो 1 0 1 0, अगर रिमाइंडर है तो 0 0 1 1 ऐसे डिस्प्ले होगा। सॉरी, सो सॉर्ट फंक्शन नहीं यूज करना है, रिवर्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा। सो देयर इज वन मोर फंक्शन अवेलेबल इन R व्हिच इज कॉल्ड एज REV। दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द वेक्टर एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। लास्ट वाला, लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट पहले डिस्प्ले होगा, सेकंड लास्ट एलिमेंट इंडेक्स का एलिमेंट बाद में डिस्प्ले होगा, एंड सो ऑन। सो रिवर्स फंक्शन यूज करना है। किसको रिवर्स करना है, ए को, ए वेक्टर को रिवर्स करना है। दैट्स ऑल एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, we'll try to execute this program first to check whether output is correct or not. So let me save this program by name binary binary.r नाम से मैंने प्रोग्राम को सेव किया है। I will source that program. ठीक है, तो इनपुट नंबर इज सपोज 10, so the binary equivalent of 10 is 1010, so output is correct। yes, 10 का binary 1010 है, करेक्ट, चेक कर सकते हो कैलकुलेटर। 5 का 101 है। ठीक है, अगर आपने प्रोग्राम और एक बार रन किया, input number is suppose 5, so binary 101, so yes, you can try for any number, program will give the correct exact output। write down this program। फाइनल स्लिप में प्रोग्राम है 15 मार्क के लिए।
क्वेश्चन लिख सकते हो, प्रोग्राम टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। क्वेश्चन लिखो पहले, उसके बाद प्रोग्राम आना चाहिए। डेसिमल टू बाइनरी। Any doubt up to this? Any doubt, students? No, sir. Okay, so today we'll stop here. In next lecture, we'll discuss about next data structure, which is list. Okay? Bye, students. You can leave the meeting now. एक मिनट ना. Leave the meeting, students. Leave the meeting. इसके बाद लेक्चर नहीं होने वाला. No lecture after this.